Bismillahirrahmanirrahim. So students, the last topic of the chapter number 2 that are the conjugated molecules. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है. So with the conjugated molecule, as we already have discussed in the topic of plasma membrane, that conjugated molecule is the conjugation. Conjugation means combination, ठीक है. So means that these are those molecules which are formed by the combination. Now which molecules are combining and why do they get combined, क्या रीज़न होता है उनके combination का, so इसको हम चल के डिस्कस करते हैं. So बेटा conjugated molecule is a combination of two different macromolecules. Okay, so this is the combination of two different macromolecules. देखिए हमने पहले बात की थी कि कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो मोनोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास या माइक्रोमर्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, यानी अगर जैसे हम एक बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट एमाइनो एसिड्स जो हैं यानी n नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स ये जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास प्रोटीन बनता है. सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास फैटी एसिड्स जो हैं या जो है फैटी एसिड ना हो तो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ना हो तो लिपिड्स अल्कोहल के डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर कंबाइन हो तो आपके पास लिपिड्स की सिंथेसिस होती है. ठीक है, सो बेटा दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन. ये भी आपके पास एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. ठीक, लेकिन देखिए जब ये मोनोमर्स जो हैं ये कंबाइन होते हैं तो एक मैक्रोमर की फॉर्मेशन होती है. So when these macromers get combined with each other, yani protein and lipids, these are the macromolecules are macromers. So when these macromers and when these macromolecules combine together, so these molecules are named as conjugated molecules. ठीक है, so we can say that the molecules formed by the combination of two molecules of different categories. देखिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था, लिपोप्रोटीन. ठीक है, सो लिपोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और टू डिफरेंट कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि इसमें एक लिपिड्स हैं और दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. So these lipids and proteins they both belong to the different categories. ठीक है, they are not of same type, they do not have the same functions, they do not have the same properties. So they are different molecules, but both of them are macromolecules. They are larger structures. ठीक है ना, लेकिन जब इन larger structures का भी combination होता है तो हमारे पास जो molecules बनेंगे of different categories के molecule के combination से उनको आप बोलेंगे conjugated molecules. ठीक है, हाँ बेटा फिर एक चीज और हमने पढ़ी थी कि if the conjugated molecules like glycoprotein, glycolipids and the lipoproteins combine, then they form a complex conjugated molecule which is called as glycocalyx. ठीक है, so glycocalyx is different. Okay, वो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ आपके conjugated molecules हैं. So there are 4 types of conjugated molecules: lipoprotein, glycoprotein, glycolipids and finally the nucleoproteins. ठीक है, so first comes the lipoprotein. So lipoprotein is the combination of two units or two different macromolecules of different categories, and these are lipids and proteins. So lipoprotein is a combination of lipids and proteins. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? So they are present on the biological membranes and in the plasma of blood. ठीक है, या आप बेटा ये भी कह सकते हैं कि they are also present in the extracellular fluid. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे कि एक एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, दैट कैन बी द लिम्फ. ठीक है, सो उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक, इसके अलावा अगर आप इनके ऑर्गेनाइजेशन देखें या इनकी स्ट्रक्चर देखें कि हाउ डू दे आर ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सो बेटा इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है कि वी हैव लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि दे फॉर्म अ कोर लाइक स्ट्रक्चर. जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये कोर बना रहे हैं, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बन रहा है. इनकी अरेंजमेंट इस तरह से है बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड डेफिनेटली कि ये एक कोर लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, इन व्हिच द लिपिड्स एंड स्पेशली द फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट विद द प्रोटीन्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स क्यों होते हैं? देखिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि लिपिड्स डू नॉट पास द पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, so if the lipids molecule do not allow the movement of the polar molecules or the movement of the lipids,
So we can say that we need a molecule that is needed for the transport of these triglyceride or lipids. ठीक है? So for that we need a lipid type of lipid that can help in the movement of the polar molecule. So बेटा यहाँ पर phospholipids हो गए and along with phospholipids we have the proteins. ठीक है? So अब ये कह सकते हो कि a core is formed with the phospholipids and the proteins. And why this core has formed, यानी इस lipoprotein की synthesis क्यों हुई है? So this is needed for the transport of the lipids and especially the transport of triglyceride from the liver to muscles. ठीक है? यानी triglyceride liver से निकलेंगे और muscles की तरफ जाएंगे. So how would they move? So definitely they will move with the help of this core which is called the lipoprotein. ठीक है? So triglyceride will be packed inside it and then helps in the movement. ठीक है? अब जब ये मसल्स में जाते हैं तो मसल्स की मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकता है क्योंकि phospholipids and proteins both can diffuse from the cell and they helps in the movement of the material in and out of the cells. ठीक है? So we can say that they helps in the transport. Then next they help to sustain the nerve cells in the body. ठीक है? nerve cells जो होते हैं, जो neurons होती हैं, जो nerves होती हैं, उनको sustain करना है body के अंदर for a longer period of time and usually जो myelin sheet की formation होती है cross it वो भी lipoprotein से बनी हुई होती है. ठीक है? And the precursor of bile, so bile pigment जो होता है जो gall bladder में produce होता है for the emulsification of the lipids, कि वो lipids को emulsify करता है और ताकि वो बाद में small intestine में lipase enzyme की मदद से digest हो जाए. ठीक है? So these are the roles of lipoproteins. Then the second type of conjugated molecule which is the glycoprotein and it is the combination of carbohydrates and polypeptides. So you know that polypeptide is a protein. ठीक है? So बेटा these are present in cell membrane, blood as well as in albumin. अगर आप देखें इसके कॉम्बिनेशन को तो जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर इन व्हिच sea of lipid is present, the fluid of lipid is present in which the proteins are present in a random or mosaic pattern. ठीक है? But the attachment of the carbohydrates if done with the protein then this molecule is called glycoprotein. ठीक है? So usually ये glycoproteins जो होते हैं वो आपके पास present होते हैं cell membrane के ऊपर. ठीक? लेकिन बेटा ये blood में भी present है because the immunoglobulins and immunoglobulins जिनको आप actually proteins कह रहे होते हो but they are not only proteins. आपको मैंने शायद oligosaccharides में भी बताया था कि oligosaccharides जो होते हैं वो इन प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं and these antibodies are immunoglobulin proteins. ठीक है? So immunoglobulin proteins and antibodies are present in the blood, so definitely they are present in the blood as well. ठीक है? और immunoglobulin antibodies हैं, antibodies are defensive in nature क्योंकि वो एक specific antigen को या एक specific type के पैथोजन को किल करने में हेल्प करती हैं. Then second, as we already have discussed in the plasma membrane that it helps in the recognition signs or it helps in the कह सकते हैं cell surface marker. ठीक है? So बेटा आपको पता है कि ये एंटीजन रिसेप्टर्स होती हैं. जैसे अगर ये HIV का मॉलिक्यूल है या HIV का वायरस है तो आपने पढ़ा था कि उसमें कोर होता है और उस कोर के अंदर जो है वो RNA के स्ट्रैंड्स होते हैं. अच्छा, अब इसके अलावा इसके ऊपर यूं इस तरह से स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं. ठीक है? सो ये जो स्पाइक हैं जो कि आके हमारे ब्लड के साथ या T लिम्फोसाइट के साथ अटैच होते हैं उनको स्पाइक कहा जाता है. दी स्पाइक्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर. ठीक है? वहां मैंने आपको एग्जांपल शायद बैक्टीरियोफेज की दी थी और फिर ये भी आपने पढ़ा था कि किस तरह कोरोना का जो वायरस है वो खाली हमारे नेक के या थ्रोट के जो सेल्स हैं उनके साथ कंपैटिबल होता है. सो एंटीजन रिसेप्टर्स, एंटीजन रिकॉग्निशन साइट्स जो होती हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर. ठीक है? इसके अलावा जो कुछ हार्मोन्स हैं स्पेशली GnRH कहते हैं बेटा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, और ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से. ठीक है? एंड इट एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड.
ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में FSH या LH हार्मोन्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये फिर स्पेसिफिकली जाके ओवरीज के ऊपर या टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की को स्टिमुलेट करने में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दैट इज GnRH or gonadotropin releasing hormone which helps in the stimulation of the reproductive hormones, ठीक है। एंड TSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए, और थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में होता है, ठीक है। सो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिकॉग्निशन करता है, हार्मोन की स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। और इसके अलावा आपने जैसे सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, जिसको आप वैक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि हार्मोन रिसेप्शन साइट जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बनी हुई होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, ठीक। दीज हार्मोन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। आपने ये नहीं कहना कि ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है। दीज आर हार्मोन्स, और ये बने हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ हैं, जबकि बाकी सब हार्मोन के लिए जो हमारी बॉडी के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती हैं। सो फोर्थ आप ये लिख सकते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर साइट्स ये इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। और फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये हेल्प करता है वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट में, और वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट अपान मेडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Then third type, that is the glycolipids, and glycolipids is the combination of carbohydrate with lipids, and this is the combination of carbohydrate with lipids, and cell membrane and brain में present होते हैं. So we can say that all of these conjugated molecules are the integral part of the cell membrane, ठीक है। अच्छा, इसका रोल क्या है कि ये सेल रिकॉग्निशन करता है, यानी सेल रिसेप्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है सिलेक्टिन, ठीक है। सिलेक्टिन जो है ये ल्यूकोसाइड कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो ये सिलेक्टिन जो है वो ल्यूकोसाइड के ऊपर प्रोड्यूस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करते हैं, यानी ल्यूकोसाइड के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आके बाइंड करेगा ये सिलेक्टिन मॉलिक्यूल, और फिर वो उसको इम्यूनिटी की तरफ डिफेंसिव क्रिएट या डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या कह रही हूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोटीन है, वॉल है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके साथ आके अटैच होगा सिलेक्टिन, किसकी, व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट की, ठीक है। जब ये इसके साथ आके अटैच होगा तो इसको स्टिमुलेट कर देगा। अब ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आगे जो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोलिपिड्स का, दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड टाइप, ठीक है। अब जो आपको पता है कि आपके पास ये आरबीसी है, तो आरबीसी के ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हैं सपोज, ठीक है। तो इन ग्लाइकोलिपिड्स के साथ सपोज आगे एंटीजन ए अटैच होता है, ठीक है। जब इसके साथ आके एंटीजन ए अटैच होगा, यानी इन ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, इफ एंटीजन ए इज गेटिंग अटैच विद इट, देन दिस टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। अगर इसके साथ बी एंटीजन आके अटैच हो जाए तो हम इसे कहेंगे ब्लड ग्रुप बी, और अगर ए और बी दोनों अटैच हो जाएं तो हम इनको कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड टाइप। कैसे कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एंटीजन आके अटैच होते हैं, ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड्स इन नेचर होते हैं और ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ एंटीजेंस, ऑफ ब्लड एंटीजेंस, ताकि हमारे पास ब्लड टाइप की अपीयरेंस या फिनोटाइप विजिबल हो सके, ठीक है। Last type of conjugated molecule, and this is called the nucleoprotein. So beta nucleoprotein is composed of nucleic acid and the proteins, ठीक है। और ये आपने जैसे राइबोसोम्स में पढ़ा था कि राइबोसोम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ rRNA प्लस प्रोटीन, 35-65% रेशियो था उसमें। क्रोमोसोम, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है।
सो डीएनए एंड हिस्टोन का जो कंपोजिशन होते हैं या उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है कि हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो 4-4 की फॉर्म में यूं अरेंज होती हैं, यानी फर्स्ट 4 सामने होंगी तो सेम वही वाली 4 उसकी बैक पे होंगी। H2A अगर सामने है तो H2A उसकी बैक पे भी प्रेजेंट होगा। H2B, H3 and H4, these are the 4 histone proteins on the front and the same 4 histone proteins on the back, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कोर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस कोर इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरवाइनिंग ऑफ द डीएनए और फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो इसने क्या किया कि हमारे पास देखें यूं अगर एक प्रोलॉन्ग डीएनए का स्ट्रैंड है तो ये सेल में इसी तरह से नहीं आ सकता, ठीक है। आपने पढ़ा है कि 3 बिलियन बेसिस से बना हुआ होता है। सो इसको हमने पैक करना है ताकि ये कम जगह पे आए। तो इसको पैक करने के लिए यू सपोज आपके पास ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स का कोर बना हुआ है तो ये इस हिस्टोन प्रोटीन के गेज यूं रैप हो जाएगा, ठीक है। अब जब रैप होगा तो कम जगह के ऊपर ज्यादा डीएनए जो है वो आ सकता है, जिसको आप इवन कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक बेटा। सो ये जो आपके पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बट इट इज बाइंडेड अलोंग द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या होंगे कि जाहिर राइबोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है इन ट्रांसलेशन, व्हाइल द क्रोमोसोम्स जो है वो आपका हेरिडिटी यूनिट है। सो वी कैन से दैट द न्यूक्लियोप्रोटीन हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है बेटा। सो ये आपके पास हो गया शॉर्ट क्वेश्चन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जब आपको पेपर में आए तो आप इन सब हेडिंग्स के साथ जो है वो इन सारे पॉइंट्स को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस तो साथ साथ होते रहते हैं, ठीक है।